Dr. Neha, and the topic of today's presentation is bacterial keratitis. First, we'll do some anatomy of cornea. General, the cornea has 3/4 of the optical power of the eye. It doesn't have any blood vessels. It is the densely innervated tissue. It is supplied by first division of trigeminal nerve. The diameter is 11.5 millimeters vertically and 12 millimeter horizontally. The thickness is 540 micrometers. The structure is composed of 5 layers: epithelium, stratified, squamous, non-keratinized. There is a single layer of columnar cells, 2 or 3 strata of wing cells, 2 layers of squamous surface cells. The palisades of vagus are present at the corneoscleral limbus, where corneal stem cells are located. It is critical for the maintenance of physiological barrier. Bowman's layer is acellular superficial layer of stroma, which is made of collagen fibers. Stroma is regularly oriented layer of collagen fibrils. 90% of corneal thickness is stroma. It can scar, but it cannot regenerate. Descemet's membrane, discrete shield of collagen fibrils, modified basement membrane for endothelium, and it can regenerate. Endothelium maintain corneal detergescence. Cell density is 3000 cells per millimeter cube. It cannot regenerate, and number of cells decrease at about 0.6% per year. Bacterial keratitis. Common pathogens include Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, and Streptococci. Other less common organisms are Neisseria gonorrhea, Neisseria meningitis, Corynebacterium diphtheria, and Haemophilus influenzae. Risk factors are contact lens wear, hypoxia, trauma can cause corneal epithelium compromise, and soft contact lens wearer are at higher risk. Trauma can be either by refractive surgery or agricultural injury. There can be ocular surface disease, immunosuppression, and vitamin A deficiency. The clinical features: symptoms, pain, photophobia, blurred vision, mucopurulent or purulent discharge. Signs: there's going to be an epithelial defect, stromal edema, folds in Descemet's membrane, anterior uveitis with actinion, chemosis, and eyelid swelling. Other signs: descemetocele formation, scleritis, endophthalmitis, scarring, and reduced corneal sensation. Investigations: corneal scraping, conjunctival swabs, contact lens cases, gram staining, culture, and sensitivity. The treatment: general hospital admission. Hospital admission is required when there is severe disease. For example, when the size of the infiltrate is greater than 1.5 millimeter, there is a central corneal ulcer, or there is hypopion, and we also admit the patient when we are doubting that the patient is not compliant, and the involving eye is the only eye of the patient. Discontinuation of contact lens wear. Then local broad spectrum antibiotics that cover most pathogens are given. Initially instilled at hourly interval for 1 to 2 days, then tapered off. Antibiotic monotherapy or duotherapy is given. Other than that, subconjunctival antibiotics can be given. Midratics are given so that posterior synechiae are not formed. Steroid has a very controversial role in keratitis. Then systemic potential for systemic involvement. Systemic antibiotics are given when there is potential for systemic involvement. There is severe corneal thinning and scleral involvement. Then management of apparent treatment failure. No improvement in following 1 to 2 days. Antibiotic regimen should be reviewed. If still no improvement after further 2 days, re-scraping should be performed on broader range of media, and we consider non-bacterial causes. If culture is negative, then we perform corneal biopsy for histology. Excisional keratoplasty in cases of non-responding to medical therapy. And then if there is a perforation, it can be, and if it's small, it can be managed by bandage contact lenses. Tissue glue can be used for large perforation. Penetrating keratoplasty and corneal patch graft can also be used. For visual rehabilitation, keratoplasty for residual dense corneal scarring, rigid contact lens for irregular astigmatism, cataract surgery for secondary lens opacities. Thank you.
रिवीजन था ना था इसलिए। Substatic infection, एंड टाइप ऑफ ट्रॉमा, type of trauma. वो हमने जरूर लेना है किस चीज से हुई। अच्छा, और उसके बाद आपकी हाउ टू ट्रीट इट, और उसकी मैनेजमेंट का दूसरा क्वेश्चन क्या करेंगे, Investigation करेंगे. इन्वेस्टिगेशंस क्या करेंगे, फिर corneal scraping करेंगे. Slit level resolution करेंगे. फिर visual acuity check करेंगे. Slit level. क्लिनिकल स्टेन किया, और स्टेन क्यों करेंगे, स्टेन से क्या चीज पॉजिटिव है, Epithelial defect. एपिथेलियल डिफेक्ट और वायरल केराटिटिस के पैटर्न दोनों जो है स्टेन से पॉजिटिव आए। अच्छा, उसके बाद फिर अब उसके बाद डिपेंड करता है कि आप उसकी मैनेजमेंट शुरू कर देते हैं। और ठीक है, क्लिनिकल साइंस सारे एग्जामिनेशन हो गए कि आपको ये बैक्टीरियल केराटिटिस है, आईयूपी नॉर्मल है और कुछ नहीं है, तो अब उसकी मैनेजमेंट स्टार्ट करते हैं, ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं। तो ट्रीटमेंट किस बुनियाद पर शुरू करेंगे, आपने स्ट्रेट अवे हम उसको कल्चर करवा लेंगे स्क्रैपिंग करके, या कुछ और करेंगे। If there is a small initial stage ulceration, start of bacterial keratitis, simple antibiotics are enough. तो आप उसमें कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि आपने जब एग्जामिनर को जवाब देना है तो कॉर्नियल स्क्रैपिंग के बाद जवाब नहीं देना। उन्हें कि क्लिनिकली आप ये करेंगे, उन्हें कि स्क्रैपिंग इज मस्ट शुड बी, कि अगर ये फॉर एग्जाम्पल हमारी ट्रीटमेंट फेलियर हो जाती है तो फिर हमारे पास एक दफ़ा एंटीबायोटिक स्टार्ट करने के बाद हम कोई सही जवाब नहीं दे पाए, हम उसको कोई असल उसके मीडिया से उसको नहीं निकाल सकते कि कौन सा ऑर्गेनिज्म। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि अब आपकी मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी क्या होगी, आपने स्क्रैपिंग भिजवा दी, अब आप क्या करेंगे, Broad spectrum antibiotics. उसका क्या कॉम्बिनेशन होगा, क्या करते हैं ब्रॉड स्पेक्ट्रम, क्या क्या, अच्छा, उस पर उसकी क्या कंसंट्रेशन होगी, Depending upon the condition. मॉक्सिफ्लोक्सासिन देंगे, मॉक्सिफ्लोक्सासिन किस कंसंट्रेशन में देते हैं, बिगम उसकी क्या डोज है आजकल, उसकी किस प्रिपरेशन बनती है, टॉपिकल मॉक्सिफ्लोक्सासिन, टॉपिकल टोब्रामाइसिन किस कंसंट्रेशन में देते हैं, और फोर्टिफाइड की क्या होती है, टोब्रामाइसिन की कंसंट्रेशन कितनी होती है, इसमें से बुक पर लिखा हुआ 3 milligram, ठीक है। So जो डेंटल टोब्रामाइसिन 3 मिलीग्राम 45 हो जाएगी, 2 मिलीग्राम है, ये 2 मिलीग्राम तो कमर्शियली अवेलेबल भी है, 0.2%, 2% जो है वो कितनी है, पढ़ो क्या लिखा हुआ है, 1% टोब्रामाइसिन लिखी हुई है। Moxie has superior upper penetration, novel after patient has connotation of modified vehicles having reduced आज नीचे एंटीबायोटिक्स मंगवा के तो उसकी किसी पेशेंट को आती है तो उसके ऊपर कंसल्टेशन पढ़े, कौन कौन सी कंसल्टेशन है, किस का 45 ओवरेक्सफोर्ड की क्या है, 2 मिलीग्राम पर ml क्या होता है, और जब हम उसको खुद प्रिपेयर करना है तो कैसे, ये लिखा नहीं हुआ इसके ऊपर, जी सर, इसमें जेंटरमैक्सिन में जो वो डोग्रा में आएगा उसकी कंसंट्रेशन 1.5% लिखी है, 15 mg per ml. 15 mg पर ये 45 है, 45. नॉर्मल जो आता है नॉर्मल 0.75 ये दर्ज लिखा हुआ है हर जगह जेंटरमैक्सिन का. और टोब्रामाइसिन उसके में सेफ्लोक्सासिन, सेफ्लोक्सासिन उसकी है, टोब्रा की है, तो उसी क्लास में आता है. उसी क्लास में माइनर ग्लाइकोसाइड है ना, डिफरेंट ग्रुप्स कौन कौन से जी डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ एंटीबायोटिक्स कौन कौन फुल थिकनेस इन्वॉल्वमेंट है। अब आप क्या करेंगे, हाउ टू मैनेज इट, अपार्ट फ्रॉम हिस्ट्री एग्जामिनेशन उसका करके अब आप उसको क्या करेंगे, और स्क्रैपिंग, अब आप इसके लिए क्या करेंगे, बैंडेज कॉन्टैक्ट लेंस. so second generation से related और इस ये आपकी फर्स्ट ट्रीटमेंट आपने दी है से तो ओफ्लॉक्सासिन दी है या ओब्रेक्सफोर्ड दी है, ओब्रेक्सफोर्ड या टोब्रामाइसिन ज़्यादा कंसिडर 45 एंटीबायोटिक्स दी है, रिस्पॉन्स नहीं कर रही, second generation दिस इज सेकंड डे। अब आपके पास पेशेंट आ गए हैं, एब्सेस बढ़ी हुई है, किसी ने डॉक्टर ने शुरू की हुई एंटीबायोटिक्स, आपके पास सेकंड स्टेज पे आया, अब आप क्या करेंगे, second generation ओरल स्टार्ट
अच्छा, उसमें बेसिकली ये आप कैसे प्रोसेस करेंगे कि ये जो इसका जो साइज ऑफ लीजन है ये बढ़ रहा है कि कम हो रहा है, तो साइज बनाएंगे और उसकी जो आपने प्रोग्रेशन है वो कैसे चेक करनी है? फॉर एग्जाम्पल अब यही पेशेंट जो आपने देखा है ये आपने उसको सेम ड्रग्स पे रखा है, आपको नहीं पता ये रिस्पॉन्स कर रहा है कि नहीं कर रहा है, आप नेक्स्ट डे उसको देखते हैं, नेक्स्ट डे अब ये पेशेंट कॉर्नियल अल्सरेशन को कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, अब आप क्या करेंगे? पहले तो हम उनसे हिस्ट्री पूछेंगे कि कॉर्नियल इन्वॉल्वमेंट को कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, ऐसा लगता है ऐसे वैसे जैसे कल देखा ऐसे आज है, देन दिस इज अ साइन ऑफ इम्प्रूवमेंट, स्टेबिलिटी इज अ साइन ऑफ इम्प्रूवमेंट, बढ़ नहीं रहा ना, तो स्टेबिलिटी इज अ साइन, हम सेम ड्रग रेजिम को फॉलो करेंगे, ठीक है। यहाँ पे हमारी मिस्टेक ये होती है, हम एक और एंटीबायोटिक्स शुरू कर देते हैं और यहाँ पे ऐसी भी लोग हैं जो के साथ एंटी फंगल शुरू कर देते हैं। कैसे? और फोर्थ फिफ्थ डे पे जब आपके ऊपर बैक्टीरियल केराटिटिस और ड्रग टॉक्सिसिटी में डिफरेंशिएट करना लाजमी है, वो कैसे करेंगे कि अब हमारी ड्रग टॉक्सिसिटी कर रही है कि बैक्टीरियल केराटिटिस ज्यादा हो रहा है? आई विल लुक मोर इन्फ्लेम्ड, बैक्टीरियल केराटिटिस रिस्पॉन्ड कर रहा था फोर्थ डे पे, आपने 6 डे पे उसी एंटीबायोटिक्स को कंटिन्यू किया तो अब आपने देखा कि आपकी आई इन्फ्लेम जनरली बहुत ज़्यादा है, और ये स्टीरॉइड्स का आपने लिखा हुआ है, स्टीरॉइड्स का बहुत कंट्रोवर्शियल रोल है, स्टीरॉइड्स का कोई कंट्रोवर्शियल रोल नहीं है, उस पर लफ्ज़ आपको यूज़ करना है जुडिशियस यूज ऑफ स्टीरॉइड्स। स्टीरॉइड्स लाइफ सेविंग कॉर्निया सेविंग ड्रग है, स्टीरॉइड्स हमें माइल्ड डोज में जब ये इन्फ्लेमेशन आ रही होती है और ड्रग टॉक्सिसिटी कॉर्निया स्टेबल हो चुका है, ऑर्गेनिज्म जो बैक्टीरिया ऑर्गेनिज्म है वो रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, इट्स द टाइम 5th to 7th डे इज द टाइम टू स्टार्ट स्टीरॉइड्स, और उसकी लेकिन जुडिशियस यूज, अगर अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है कोई जरूरत नहीं है, हमें फिर स्टीरॉइड लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन इन्फ्लेमेशन के टोटल जो पार्ट को बेहतर करने के लिए देयर इज अ नीड ऑफ स्टीरॉइड, माइल्ड स्टीरॉइड। कौन सा स्टीरॉइड देंगे? फ्लोरोमेथालोन। व्हाई फ्लोरोमेथालोन? What is the difference between fluoromethalone and prednisolone? And less potent, less effect on the IOP with fluoromethaline as compared to dexamethasone. So lower, sorry, lesser lesser potent उससे start करके Actually, we do not need penetration. Fluoromethalone का basic मकसद जो उसकी potency कम है intraocular, because it is not as good penetrating. इसके penetrating to power है that is less than Maxidex and even less than prednisolone. तो prednisolone की penetration power को हमें uveitis में चाहिए, जब अंदर मौजूद है तो हमें inflammation अंदर है तो we need prednisolone and Maxidex. सबसे important सबसे ज़्यादा किसकी है penetration? prednisolone. उसके बाद Maxidex की, then fluoromethalone और clopidogrel जो है उन सब की जो penetration कम है, बट सरफेस पे काफी इफेक्टिव है, ठीक है, और सरफेस पे सिंपल फ्लोरोमेथालोन काफी हद तक इफेक्ट करेगा। सेकंड, स्ट्रॉन्ग स्टीरॉइड्स जो कि पेनिट्रेशन ज्यादा है, दे आर टॉक्सिक टू कॉर्निया एंड दे काजेस मेल्टिंग, हमें स्ट्रॉन्ग स्टीरॉइड्स नहीं देने, और देने हैं तो बहुत जुडिशियस यूज, 1-2 दिन के लिए दिए फिर बंद कर दिए, इससे ज्यादा नहीं दे सकते, लेकिन जुडिशियस यूज ऑफ स्टीरॉइड इज मैंडेटरी इन बैक्टीरियल केराटिटिस, जबकि टॉक्सिक रिएक्शन आ रहा है ड्रग्स का। अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे टर्न आता है कि बैक्टीरियल केराटिटिस आपने 3rd डे पे देखा, अब आपने 5th डे पे देखा, प्रोग्रेस कर रहा है, अब आप क्या करेंगे? अब एंटर करेंगे तो सेकंड जनरेशन पे जाएंगे। Reculture, re-scrapping and reculture. Okay, and it's a time of change of antibiotics. सेकंड जनरेशन पे चले जाएंगे, उस पे मोक्सिफ्लोक्सासिन पे चले जाएंगे, उसमें 45 डिग्रीज कर दें, जो भी आपने उसको चेंज करना है। और कब आप उसको एंटी फंगल शुरू करेंगे? फंगल इन्फेक्शन कब होती है? 2 weeks का इंटरवल, एटलीस्ट को 10-15 डेज का 10 डेज का डिफरेंस आ चुका हो, कोई रिस्पॉन्स ना मिल रहा हो, और वो इतनी जल्दी इनिशिएट नहीं करेंगे। ट्रामा के बाद 2 दिन के बाद बैक्टीरियल केराटिटिस, बट दैट कैन चेंज टू फंगल केराटिटिस एनी टाइम, ठीक है। तो उसमें वेजिटेटिव मटेरियल क्या होता है?
Plants. मट्टी से भी उसको प्लांट प्लांट Tree branch. हाँ प्लांट पे Plants, जो है वो बेसिकली वेजिटेटिव मटेरियल है, उससे अगर ट्रॉमा होगा तो फंगल इन्फेक्शन होने का चांसेस ज्यादा है, बैक्टीरियल भी हो सकता है, ठीक है? तो जरूरी नहीं कि वेजिटेटिव मटेरियल है तो एंटी फंगल शुरू हो। तो आपने एंटीबायोटिक्स को बहुत सही तरीके से फॉलो करना है, रूल्स एंड को जो है वो ये नहीं कि 4-5 एंटीबायोटिक्स करके एक दिन पे दे दी, उसका कोई फायदा नहीं, उससे उल्टा टॉक्सिक रिएक्शन शुरू हो जाएगा। और सर कोई चीज? हाँ, तो उसकी जहाँ पे भी इन्फेक्शन हो, चाहे वो कॉर्नियल एब्सेस है, केराटाइटिस है, हाइपोपियन अल्सर है या एंडोथेल्माइटिस है, देयर आर टू फैक्टर्स। वन आर होस्ट रिलेटेड, जो पेशेंट सफ़र कर रहा है उसमें कहीं इम्यूनोसप्रेशन तो नहीं हुई, डायबिटिक तो नहीं है, आउट ऑफ कंट्रोल डायबिटीज, अब हिस्ट्री में पूछेंगे डायबिटीज़ कंट्रोल करेंगे, स्टीरॉइड पे तो नहीं है, स्टीरॉइड बंद कर देंगे, और किसी इम्यूनोसप्रेशन पे तो नहीं है, ओल्ड एज के पेशेंट्स में इम्यूनिटी कम हुई है। सो दीज आर होस्ट फैक्टर एंड देन दे आर बैक्टीरियल और ऑर्गेनिज्म रिलेटेड फैक्टर। अगर विरुलेंट ऑर्गेनिज्म है वो इंटैक्ट एपिथेलियम में से भी पास हो जाएगा। नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स कितने हैं, एक पेशेंट ने मेडिकेशन रखी हुई है और वो कंटेमिनेटेड है और वो यूज़ करी जा रहा है, या कॉन्टैक्ट लेंस इन्फेक्टेड है और वो फिर भी यूज़ करी जा रहा है, सो यू हैव टू डिसकंटिन्यू द कॉन्टैक्ट लेंस, देखना है कौन सी मेडिसिन यूज़ करना, यार नई बोतल ले लो, ये छोड़ दो ये। सो you have to see the factors organism related and so ये एंडोथेल्माइटिस में भी यही था। तो फिर आप देखते हैं कि मॉर्फोलॉजी अल्सर की, इन्फेक्टिव अल्सर्स आर यूजुअली सेंट्रल और पैरासेंट्रल, कॉर्निया के सेंटर। जो पेरिफेरल होते हैं दे आर यूजुअली डीजेनरेटिव, ये जो टेरियन मार्जिनल डीजेनरेशन है, यस। सो इन्फेक्टिव अल्सर्स आम तौर पे पेरिफेरी में नहीं होते और डीजेनरेटिव अल्सर्स आम तौर पे सेंटर में नहीं होते, तो इस लोकेशन से पता चलता है। क्या रीजन है? पता रीजन जो ट्रॉमा होगा वो मोस्टली सेंटर में होता है। अगर कोई चीज लगी है किसी के आंख में, कौन सी जगह इम्यून कॉम्पिटेंट है? सेंटर साइड पे तो स्टेम सेल्स होते हैं ना कॉर्निया के। साइड ऑफ द कॉर्निया इज इम्यून कॉम्पिटेंट, जो उसके इम्यून प्रिविलेज वहाँ ज्यादा है, सेंटर में तो इम्यूनिटी इतनी ज्यादा पहुंचेगी नहीं, तो वहाँ पे अल्सरेशन होने का चांस, इन्फेक्टिव अल्सरेशन का चांसेस ज्यादा है। जबकि जो सर कह रहे हैं डीजेनरेटिव केराटाइटिस, वो बेसिकली इम्यून मॉड्यूलेटेड नहीं है, वो इसलिए पेरिफेरल ज्यादा। अच्छा, सो सेकंड थिंग इज द इंक्यूबेशन पीरियड। वो आपने अभी बता दिया है कि अगर ट्रॉमा की हिस्ट्री है और दूसरे तीसरे दिन आ गया तो इट इज़ बैक्टीरियल, अगर 2 हफ्ते बाद आया तो इट्स लाइकली फंगल, या आपको 2-3 हफ्ते हो गए हैं ट्रीटमेंट देते हुए और वो एंटीबायोटिक्स के बावजूद भी ग्रो कर रहा है तो इट इज़ लाइकली फंगल। हाँ, तो इन्फेक्शन कहीं पे भी हो, द फर्स्ट थिंग वी डू इज़ टू टेक द कल्चर्स। ठीक है, ये हमारे यहाँ ज़्यादा रवाज है कि भाई ट्रीटमेंट शुरू कर दो, क्योंकि हमारी लेबॉर्ट्री सर्विसेज थोड़ी वीक हैं। आप बाहर कहीं जाएंगे तो सबसे पहला काम वो यही करेंगे, स्टेनिंग एंड कल्चर। पहले आप वहाँ से ले लेते हैं ग्राम और जिम्जा स्टेनिंग, वो करके देखते हैं स्लाइड पे कौन सा ऑर्गेनिज्म है, ग्राम पॉजिटिव है, ग्राम नेगेटिव है, और स्टेनिंग तो फौरन आपको रिपोर्ट मिल जाएगी, कल्चर में टाइम लगेगा। सो यू टेक द स्पेसिमेन एंड स्टार्ट द ट्रीटमेंट। रिपोर्टें आने का इंतज़ार नहीं करते, बिकॉज द कॉर्नियल मॉर्बिडिटी जो है वो उसके सिक्वेले बहुत ज़्यादा हैं। ओपेसिटी बन गई तो क्या फ़ायदा हुआ, उस वीएम तो उसकी ख़राब हो जाएगी। सो यू डोंट वेट, यू स्टार्ट विद द ट्रीटमेंट। अब ट्रीटमेंट जो सबसे एनर्जेटिक ट्रीटमेंट है आप वो शुरू करें, लेकिन हर ट्रीटमेंट की कुछ लिमिटेशंस हैं। जैसे फर्स्ट जनरेशन ऊफ्लॉक्सासिन है, सेकेंड जनरेशन सिप्रोफ्लॉक्सासिन है, थर्ड जनरेशन लीवोफ्लॉक्सासिन है, फोर्थ जनरेशन मॉक्सीफ्लॉक्सासिन और गेटिफ्लॉक्सासिन है। सो अब लिमिटेशंस क्या हैं? सूडोमोनास के अगेंस्ट इफेक्टिव है
सिप्रोफ्लॉक्सासिन, इसकी पेनिट्रेशन आई के अंदर बहुत अच्छी है, इट क्रॉसेस द कॉर्निया, लेकिन ग्राम पॉजिटिव के अगेंस्ट इफेक्टिव नहीं। जो मॉक्सीफ्लॉक्सासिन है वो ग्राम पॉजिटिव के अगेंस्ट इफेक्टिव है, लेकिन मेथिसिलिन रेजिस्टेंट स्टेफ ऑरियस MRSA मरसा उसके अगेंस्ट इफेक्टिव नहीं है। सो ये लिमिटेशंस हमें ज़हन में रखनी है। ट्रीटमेंट हम फौरन शुरू कर दें, और कैसे शुरू करेंगे? 1 ड्रॉप एवरी 5 मिनट्स फॉर हाफ एन आवर, लोडिंग डोज। ये नहीं है 1 ड्रॉप 3 टाइम्स अ डे, वो वाली कहानी नहीं है। सो यू स्टार्ट विथ 5 minutes drop for half an hour, and then every half an hour drop for the waking hours। जब तक बंदा जाग रहा है सारी दिन आधे आधे घंटे के बाद एक ड्रॉप डालता रहे। कॉर्नियल अल्सर ये नहीं है कि यार हफ्ते बाद दिखा देना आके, शुड बी सीन डेली। अगर पेशेंट आपके पास वार्ड है तो आप उसको सुबह शाम देखेंगे, जैसे एंडोफ्थल्माइटिस का केस है, उसको आप हफ्ते बाद नहीं देखते, आप सुबह शाम देखते हैं। और पहले तो हम डायग्राम बनाते थे, नोट्स जब डालते थे पेपर्स में, अब आपके पास मोबाइल है, फौरन फोटोग्राफ उतारें। सुबह की फोटोग्राफ में और शाम में क्या फ़र्क है, आज की फोटोग्राफ में और कल की फोटोग्राफ में क्या फ़र्क है। ये फिर इसको अपनी हैबिट बनाएं। ये मोबाइल सिर्फ सेल्फियाँ लेने के लिए नहीं है। सो आपने ट्रीटमेंट शुरू कर दी 1 हाफ आवरली ड्रॉप, और आपने भेज दिया उसका जिम्जा स्टेनिंग, ग्राम स्टेनिंग और कल्चर के। अब द क्लिनिकल कोर्स इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। अगर क्लिनिकली पेशेंट इंप्रूव कर रहा है आप उसको नहीं छेड़ेंगे। अगर क्लिनिकली इंप्रूव नहीं कर रहा है, यू कंसिडर द कल्चर रिजल्ट्स। उसमें आता है कि जी ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट है, ये एंटीबायोटिक सेंसिटिव है, तो आप वो शुरू कर दें। आप मॉक्सीफ्लॉक्सासिन दे रहे हैं और वो इम्प्रूव नहीं कर रहा, फिर आप कम्बिनेशन थेरेपी पे चले, आप 45 ड्रग्स पे चले जाए, ठीक है, आप सिस्टेमिक ट्रीटमेंट साथ शुरू कर दें। सो ये जो ट्रीटमेंट है सिस्टेमिक में क्या शुरू करेंगे? सिप्रोफ्लॉक्सासिन या मॉक्सीफ्लॉक्सासिन? सिप्रोफ्लॉक्सासिन बेहतर है। सो 500 मिलीग्राम BD शुरू कर दें, ठीक है। तो ये कॉन्टैक्ट लेंस वियरर है। वेस्टर्न कंट्रीज में कॉन्टैक्ट लेंस की हिस्ट्री बहुत कॉमन है, बैक्टीरियल केराटाइटिस। हमारे यहाँ तो इतना नहीं है। ये बाहर के आप एग्जाम में जाएंगे तो इस पे जरा ज्यादा स्ट्रेस करें, इमीडिएटली स्टॉप करेंगे उसको स्टॉप करेंगे। और हाँ, आम और आमतौर पे लिड के भी स्पेसिमेन लेते हैं कि जी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कौन से हैं, हमने आइडेंटिफाई करने हैं कि कॉज ऑफ कल्चर क्या है। लिड का कैसे लेते हैं? कंजक्टिवल सैक का कैसे लेते हैं? और बैक्टीरियल कॉर्निया कैसे लेते हैं? स्टैटिन कैसे करते हैं? लिड का और कंजक्टिवा का स्वाब लेते हैं ना, हाँ, और वो कॉर्निया पे कैंसल होता है और कॉर्निया का सिर्फ वो डिस्पोजेबल ब्लेड ही आते हैं जो बार बड़े लगते हैं। ठीक। सो जो इसमें फ़र्क है ना, एक है स्क्रैपिंग। स्क्रैपिंग का मतलब है आप उसको ब्लेड के साथ रोल करते हैं और फर्ज करें नेगेटिव रिजल्ट आता है। अब आप सस्पेक्ट कर रहे हैं कि फंगस ना हो, तो फंगस लाइज डीप इन द फ्लोर ऑफ द अल्सर एंड इन द साइड वॉल्स। वो स्क्रैपिंग से नहीं आती, फिर आपको केराटेक्टमी करनी पड़ती है, उसका थोड़ा सा पीस काटना पड़ता है और फिर आप लेबोरेटरी में भेजते हैं ताकि वो कमेंट कर सकें। सो इफ द अल्सर इज नॉट रिस्पॉन्डिंग, यू विल कंसिडर अकैंथमीबा एंड फंगस एज द कॉज। आप एंटीबायोटिक्स दे रहे हैं और वो इम्प्रूव नहीं कर रहा, हफ्ता हो गया, 10 दिन हो गए, तो आप जो टिश्यू भेजेंगे तो लेबोरेटरी को रिक्वेस्ट करेंगे प्लीज रूल आउट अकैंथमीबा केराटाइटिस एंड द फंगल केराटाइटिस। का जो प्रॉब्लम है ना, कि वो क्लिनिकल हिस्ट्री पे बहुत ज्यादा है। उसका अल्सर जो है वो उसकी पेन के मुकाबले में छोटा
और वो एक्सक्रूजिएटिंग वर्ड यूज होता है कि पेशेंट बैक्टीरियल केराटिटिस में इतना पेनफुल नहीं होता जितना और जो फंगल है उसके लिए ये आपके पास सामने लैब है, आप खुद भी लेके जा सकते हैं। हम लोग तो करते होते थे, स्टेन करते हैं। कौन सा स्टेन करते हैं फंगस के लिए? क्यूएच स्टेन जो है, उस स्टेन के साथ आपने माइक्रोस्कोप उनके पास पड़ी हुई है, आप खुद हाइफी देखें, फिर आपको अंदाजा होगा कि क्या चीज़ है, किस चीज़ को डील कर रहे हैं। द बेस्ट अप्रोच इज कि आप लेबोरेटरी में फ़ोन करें, मेक अ लेजॉन कि जी मैं पहले एक करने लगा हूँ, एक स्पेसिमेन लेने लगा हूँ, तो वो अपने कल्चर्स और स्लाइड है सब तैयार करके बैठे हों। फिर वो आप या अपना बंदा भेज दें या आप पेशेंट लेके उधर चले जाएं, जो भी उनको फीजिबल हो। और कई दफ़ा ये होता है कि अगर कल्चर से डिस्टेंस ज़्यादा है यहाँ पे तो नहीं, तो ट्रांसपोर्ट मीडियम दे देते हैं। एक टेस्ट ट्यूब में वो न्यूट्रिएंट नाइगर होता है, उसमें आप स्वाब डाल देते हैं और वो फिर डेफिनेट कल्चर बाद में कर लें। सो इन एनी केस बैक्टीरियोलॉजिस्ट जो है उससे अगर आप लेजॉन कर लें तो वो आपको गाइड कर देता है, वो आपको प्रोवाइड भी करता है। ये जो कल्चर होते हैं और स्लाइड होती हैं सारी स्टेलाइज्ड होती हैं, वो ये नहीं कि पहले से जरासीम पड़ा हो। तो सो आपने जो है ना वो ये हेल्प लेनी होती है पैथोलॉजिस्ट के साथ। एक और क्लिनिकल साइन है जो कि कॉर्नियल की प्रोग्रेशन या फॉलो अप उसके लिए क्या है क्लिनिकल? कॉर्निया की सरफेस के ऊपर कह रहे हैं, सब पूछ रहे हैं, अब आप बताएं तो सरफेस को क्या करते हैं कि वो, अगर मैं सोच रहा हूँ सही कह रहे हैं तो वो इसी साइन का पूछ रहे हैं। उससे क्या पता चलता है वायरल में क्यों होता है? कोई सोचा वायरल में क्यों? नर्व्स वायरल नर्व्स को इन्वॉल्व करता है, नर्व्स के थ्रू आता है। अच्छा, इसमें एक और है हाइपोपियन, ठीक है ना? हाइपोपियन में किसी ने मेंशन किया, यूजुअली ऑर्गेनाइजेशन के साथ हाइपोपियन भी होता है। तो अगर हाइपोपियन रिग्रेस कर रहा है तो दैट मींस योर ट्रीटमेंट इज अच्छा। दूसरा ये होता है कि जो आउट ऑफ प्रोपोर्शन पेन है, ये क्यों होती है? कैसे नहीं होता है? पेरिन्यूरल इन्वेजन, ठीक है, वो इन्वेड करता है और जो वायरसेस है वो नर्व्स के थ्रू आते हैं, ठीक है। ये और हाइपोपियन जो है वो स्टेराइल है कि इन्फेक्टिव है, बहुत बड़ा ये क्लिनिकल स्टेरियो बन जाता है। ये कैसे पता चलेगा? इट्स स्टेराइल हाइपोपियन और इट्स अ इन्फेक्टिव हाइपोपियन। इन्फेक्टिव है तो इट्स एन एंडोथेल्माइटिस, अगर ये स्टेराइल है तो इट्स एन टॉक्सिक रिएक्शन। तो आप कैसे डिफरेंशिएट करते हैं, क्लिनिकली कैसे डिफरेंशिएट करते हैं? एक तो हमने खुद बता दिया ना कि अगर इम्प्रूव कर रहा है आपके ट्रीटमेंट से, इसका मतलब कोई ऐसी चीज़ नहीं ये तो, लेकिन क्या चीज़ देखेंगे उसमें खास तौर पे कौन सी चीज़ इन्वॉल्व है? और साथ हाइपोपियन है तो इन्फेक्टिव है मोस्ट लाइकली केराटिटिस से। एंडोथेलियम अगर इन्वॉल्व है तो मोस्ट लाइकली इट्स इन्फेक्टिव हाइपोपियन मोस्ट लाइकली। और क्या देंगे उसके लिए हाइपोपियन के लिए अगर इन्फेक्टिव नहीं है? आप सोच रहे हैं कि इट्स इन्फेक्टिव नहीं है, इट्स अ टॉक्सिक, इट्स अ स्टीरॉइड्स का जो कॉम्बिनेशन देते हैं उसको, उससे। और मेरे अपने क्लिनिकल अगर ये बुक्स का नहीं है कि आप उसको 1-2 दिन के लिए डेल्टा कॉर्टिल दे दें, टॉपिकल स्टीरॉइड से मैं थोड़ा सा हर बंदा अवॉइड करता है, तो आप 2 दिन के लिए स्टीरॉइड्स दे दें। पेशेंट डेफिनेटली डायबिटिक ना हो, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज ना हो, तो आप उसको 1-2 दिन के लिए स्टीरॉइड दे दें तो हाइपोपियन रिस्पॉन्ड करता है। लेकिन ये एक ऑफ द लेबल ट्रीटमेंट है जो फिर हाँ, वो आमतौर पे रिकमेंड ये करते हैं कि स्टीराइड आप उस वक्त देते हैं जब क्लिनिकल इम्प्रूवमेंट आपको फील हो रही है, जब जो इन्फेक्शन है वो एंटीबायोटिक को रिस्पॉन्ड कर रहा है। इसका मतलब है कि ऑर्गेनिज्म इज सेंसिटिव टू द एंटीबायोटिक। तो जो ही आप कुछ बेहतरी महसूस होती है तो आप स्टीरॉइड शुरू कर सकते। अगर इम्प्रूव नहीं कर रहा और डिटेरियोरेट कर रहा है और आप स्टीरॉइड दे दें और ख़राब हो जाएगा, तो वो नौबत नहीं हमारे। सो infection is responding to antibiotic
क्लिनिकली इम्प्रूव कर रहा है, अब आप स्टीरॉयड भी दे दें और देखें कि इम्प्रूवमेंट जारी है कि नहीं। अगर वो डिटेरियोरेट करना शुरू करे तो फिर रोक दें, अगर इम्प्रूव कर रहा है तो क्योंकि आधी जो प्रॉब्लम होती है वो इन्फेक्शन की वजह से है और आधी प्रॉब्लम जो होती है वो इन्फ्लेमेशन की वजह से। अब कॉर्निया के जो लियंस हैं उसमें आपको डिफरेंशिएट करना आना चाहिए अर्ली स्टेजेस में। सिर्फ जब इनफिल्ट्रेट हैं तो दिस इज केराटाइटिस, जब वाइट WBCs का डिपॉजिट आ गया तो ये कॉर्नियल एब्सेस कहते हैं, ठीक है। और जब हाइपोपियन बन गया तो फिर इसको हाइपोपियन अल्सर कहते हैं, जो आमतौर पे नॉर्मली हाइपोपियन जो होता है वो स्टेराइल होता है, लेकिन कॉर्निया पे जो लियन है उसकी वजह से सेकेंडरी। सर एक पेशेंट आया है, वो हिस्ट्री दे रहा है कि ट्री बार्क से इंजरी हो गई है, दरख्त की शाख कर दी है, तो हमें एंटी फंगल फर्स्ट ही पे स्टार्ट कर दी वही तो बता रहे हैं कि क्यों देनी है आपको। सेकंड ईयर पे इन्फेक्टिव है, बैक्टीरिया नहीं हो सकता, बैक्टीरिया भी हो सकता है। There's a chances that patient may develop fungal keratitis after 7 to 10 days. अगर पेशेंट 7वें दिन आया है और उसको 7वें 8वें दिन थोड़ा थोड़ा शुरू हुआ है और आपने उसको ट्रीटमेंट दिया है, रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, तो इट्स अ फंगल केराटाइटिस के लिए यू मस्ट बी 100% श्योर दैट यू आर डीलिंग विद फंगल केराटाइटिस, बिकॉज फंगल केराटाइटिस में आगे दो वैरायटीज में है। आपके जो बैक्टीरियोस्टेट फंगोस्टेटिक ड्रग्स हैं वो जो एक्ट कर रही हैं एक किस्म के फंगस के साथ, वो दूसरे फंगस पे नहीं कर रही होती। आपको कौन सी ड्रग यूज करते हैं फंगस के लिए, एंटी एम्फोटेरिसिन जो कैंडिडेटा जो है उसको नॉर्मल सारी एंटी फंगल जो है वो कर सकती हैं, लेकिन एम्फोटेरिसिन बी एक स्पेसिफिक किस्म के फंगस को नहीं कर उसके लिए एम्फोटेरिसिन बी शुरू करनी पड़ती है, पूरे लाहौर से नहीं मिलती वो, ठीक है। तो लिहाजा फंगल केराटाइटिस के लिए यू मस्ट बी 100% श्योर कि आप फंगल को डील कर रहे हैं। और फंगल के लिए हिस्ट्री इज सच एन इम्पॉर्टेंट थिंग इन बैक्टीरियल केराटाइटिस कि उसकी आपको पता होना चाहिए आप किस चीज को डील कर रहे हैं। और आपको फॉर एग्जांपल पेशेंट बैक्टीरियल केराटाइटिस से शुरू हुआ है और वो ठीक नहीं हो रहा, तो आपने ये फिर दोबारा सोचना है कि शुरू कब हुआ था, ट्रॉमा के कितने दिन के बाद ये प्रॉब्लम उनमें आता है जिनमें ट्रॉमा की कोई हिस्ट्री नहीं होती, उसमें हमें चीज़ हमें रूल आउट करनी पड़ती है। अदरवाइज ट्रॉमा हुआ उसके बाद तीसरे दिन उसको बैक्टीरियल इन्फेक्शन शुरू हुई और वो 7वें 8वें दिन रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, तो फिर भी चांस ये है कि वो ऐसा बैक्टीरिया है जो कि जैसे मेथिसिलिन रेजिस्टेंट कोई है या कोई और में और आपकी ड्रग ठीक नहीं है, ठीक है। या फिर तीसरी चीज़ टॉक्सिक है। मेरा ख्याल है मैं हफ्ते में एक दफ़ा, मैं आपको सच अपना बता रहा हूँ, हफ्ते में एक दफ़ा 7वें 8वें दिन सारी दवाइयाँ बंद कर रहा हूँ। पेशेंट आ रहे होते हैं रेफर होके कहीं से बाहर से, तमाम ड्रग्स में बंद कर देता हूँ, पेशेंट ठीक हो जाता है। उससे उन्हीं ड्रग्स से टॉक्सिक आदत हमारी ये जीपी प्रैक्टिस। आप लोग कभी जीपी मत बनिएगा। जीपी और कंसल्टेंट में फ़र्क ये होता है कि कंसल्टेंट सोच के दवाई देता है, उसे पता होता है मैं क्यों दे रहा हूँ। वही दवाई जब मरीज को देख के जीपी देता है तो उसमें फ़र्क होता है। वो 4-5 ड्रग्स होती है बड़ी सिंपल थी, वो टोब्रेक्स लिखी, विगामोस लिखी, एक एंटी फंगल भी दे दी, जोबेक्स भी दे दी, तो टेंशन ना ये 5 ड्रग्स का कॉम्बिनेशन चला के ये कौन सा आप केराटाइटिस डील कर रहे हैं, आपको ये भी नहीं पता आप डील क्या कर रहे हैं। आप देखें, आप गलत हो सकते हैं, आप चेंज कर दें नेक्स्ट डे, और आप विदिन 2 पेशेंट को उस वक्त तक कहें कि जब तक आप मुझे रोजाना नहीं दिखा सकते मैं आपको डील नहीं करता, अंदर नो सर्कमस्टेंस। उन्हें कि आप पेशेंट फिर आएगा, ठीक है ना, फिर आएगा आपके पास, उसे कहें ये और क्यों उसकी इंपॉर्टेंस है, इसलिए कि ये जो हम स्टीरॉइड यूज कर रहे हैं, क्यों स्टीरॉइड यूज करते हैं, कॉर्निया का रिफ्रैक्टिव, कॉर्निया हमारा रिफ्रैक्टिव कंपोनेंट है, कॉर्निया उड़ गया गए अब ब्लाइंड खत्म हो गया। केराटोप्लास्टी कितना मुश्किल है, तो उसमें लिहाजा ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि फंगल हमने उस टाइम शुरू करनी है एंटी फंगल जब हम क्रिस्टल क्लियर श्योर है, फिर हमें फंगल ही ट्रीट करना, ठीक है ना। और उसका KOH स्टेन लाजमी करवाना, आप उसका स्कैब उठाएं और उसके KOH स्टेन के लिए भिजवाएं और उससे खुद फोन करें लेबोरेटरी असिस्टेंट को कि आप, बल्कि आप जाएंगे ना 2 दफ़ा, आपके किसी ना किसी से रिलेशन बन जाएगा, नेक्स्ट टाइम आपको जिंदगी भर ये रिलेशन आपके फायदे के लिए, आप उसी को फोन कर देंगे यार ये मैं भिजवा रही,
तो उसको ज़रा देख लें, ठीक है ना। जो इसमें वो जिक्र किया उन्होंने, साइक्लोप्लेजिक ड्रॉप्स जो हैं, साइक्लोपेन आई ड्रॉप, वो 1 ड्रॉप इन द मॉर्निंग 1 इन द इवनिंग, जो सिलरी मसल का स्पैस्म है जिसकी वजह से पेन, फोटोफोबिया हो रहा है, वो रिलीव हो जाता है। और दूसरा अभी जो, हाँ, दूसरा जो अभी है वो कोलेजन क्रॉस लिंकिंग, उसके भी आर्टिकल्स आ रहे हैं कि इन्फेक्शियस केराटाइटिस में अगर आप कोलेजन क्रॉस लिंकिंग करें तो सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स किल हो जाते हैं, लेकिन दिस इज़ नॉट द प्राइमरी ट्रीटमेंट। तो आप शुरू एंटीबायोटिक से ही करते हैं, और अगर नहीं कर रहा रिस्पॉन्ड तो ये भी एक एडजंक्टिव ट्रीटमेंट हो सकती है, एडिशनल ट्रीटमेंट हो सकती है। सो ये भी जहन में रखें। ये ट्रॉमा की हिस्ट्री होना लाजमी है। नो, पेशेंट हमारा बाजू का नहीं ट्रॉमा देता, ट्रॉमा की हिस्ट्री, बाजू का ट्रॉमा होता है, ट्रॉमा की हिस्ट्री नहीं हो सकती, उसकी क्या वजह होती है? सोते हुए लग जाए कुछ चीज, आंख के अंदर चली जाए कुछ चीज, सोते हुए तो इंसान हाफ डेथ होती है। चलो, वेल डन।